اور آپ کو بتائیں فیصلاباد NA-108 کے انتخابات کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ضمن انتخابات رکوانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی گئی ہے۔ دائر پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 123 میں سے 10 انتخابات کروانا غیر قانونی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد NA-108 کے انتخابات کے حوالے سے اہم خبر، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ضمنی انتخابات کو رکوانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی گئی ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ جی بتائیے گا عبدالرحمان۔ جی آپ بات کریں NA-108 کے انتخابات کے حوالے سے تو یہ بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج رٹ دائر کی گئی ہے، جس میں ان کے 10 MPs موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جو 123 استعفے ٹوٹل دیے گئے تھے، لیکن حکومت نے بدقیدی سے کام لیتے ہوئے صرف 11 لوگوں کے استعفے قبول کیے، جس پر یہ انتخابات ملتوی کیے جائے۔ اور اس کے ہاتھ میں انہوں نے ایک آڈیو ٹیپ بھی، جو ابھی یہاں پیکر کی جانب سے آڈیو ٹیپ جاری ہوئی تھی، اس میں حکومت کی جانب سے جو وہ آڈیو ٹیپ کی صداقت بھی تسلیم کی گئی، تو اس کو اپنے فیور میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا کہ دیکھ لیا جائے کہ یہاں پر کس طرح سے جو استعفے ان کے منظور کیے گئے اور تمام استعفوں کے بجائے صرف مخصوص استعفے قبول کیے گئے جو کہ غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے، اور اس کو روکا جائے، جس پر یہ بھی کہا گیا کہ اس میں فریق بنایا جائے الیکشن کمیشن کو، اس کے علاوہ وفاق کو بنایا جائے، اسپیکر کو بنایا جائے، پوچھا جائے کہ صرف مخصوص استعفے کیوں قبول کیے گئے ہیں، جس پر اب یہ جو رٹ ہے اس پر جمعرات کو سماعت ہوگی اور اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ ابھی جو انتخابات میں چند دن باقی رہ گئے تھے اور تمام جو امیدوار ہیں وہ جوش و خروش سے کمپین چلانے میں مصروف تھے۔ اس سے پہلے بھی NA-108 کے انتخابات جو ہے ضمنی انتخابات ہونے ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے بھی ملتوی ہو چکے ہیں، تو یہاں پر مقابلہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا تھا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان مد مقابل تھے عابد شیر علی، جو یہاں پر پہلے ٹکٹ ہولڈر تھے نون لیگ کے، وہ مد مقابل تھے۔ تو اب یہ صورتحال بڑی عجیب ہو گئی ہے اور امیدواروں میں مایوسی کی کیفیت ہے، کیونکہ ابھی جو الیکشن کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے پہلے جب ایک امیدوار کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی گئی تھی تو اس کو فیور دیتے ہوئے اس کا انتخابات رکوانے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد احتجاج اور بس احتجاج، بجلی بلوں میں ٹیکسز اور بے جا اضافے کے خلاف تاجر سراپا احتجاج، انجمن تاجران کچہری بازار گھنٹہ گر چوک میں بجلی بلوں میں بے جا اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں، محمد علی نارو موجود ہے ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کے بلوں میں بے جا ٹیکسز اور بجلی کے جو یونٹ ہیں وہ مہنگے ہونے پر انجمن تاجران جو ہے وہ چوک گھنٹہ گھر میں، انجمن تاجران کچہری بازار کی طرف سے چوک گھنٹہ گھر میں احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کی صدارت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ سلمان عارف کر رہے ہیں، جو کہ انجمن تاجران کچہری بازار کے رہنما بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، احتجاج جاری ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی اور ظلم کا بازار پوری طرح سے گرم ہے۔ آج لوگ قوم بے پناہ اضطراب میں ہے کہ 22 روپے یونٹ بجلی، آج وہ 60 روپے یونٹ اس کو پے کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے جواب میں یہ سنا دیا جاتا ہے کہ قرضے بہت ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرضے کس نے لیے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے، اس پہ جب عدلیہ کا سٹے ہے، یہ کیوں وصول کیا جا رہا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پیٹرول جب 123 روپے تھا تو ہمیں 150 میں مل رہا تھا عمران خان کے دور میں، آج 88 روپے ہے اور ہمیں 225 میں مل رہا ہے۔ یہ 76 لوگوں کی وزیروں کی ٹیم، جس میں سے 23 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس محکمے بھی کوئی نہیں ہے، یہ 48,000 ارب کا قرضہ، یہ ان کی لوٹ مار، یہ ان کی جو نمود و نمائش، اور یہ سارا سسٹم جو ہے، یہاں پہ بیوروکریٹس، یہاں پہ بڑے بڑے وزراء، MNAs، MPAs، عدلیہ، یہ تمام مقتدر طاقتوں کے جو اداروں کے جو لوگ ہیں، یہ اگر اپنی تنخواہ سے بجلی کا بل دینے لگیں، اگر اپنی تنخواہ سے پیٹرول ڈلوائیں، تو ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کی عوام پر کیا گزر رہی ہے۔ سر، یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے، مطالبہ جو آپ نے رکھے ہیں منظور نہیں ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، میں یہ بالکل ایمانداری سے اس حکومت کو ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس ختم کیے جائیں۔ بجلی کی جو 25 روپے سے 28 روپے یونٹ تک کی قیمت ہے، صرف وہ ہم سے لی جائے۔ تمام قسم کے جو یہ شکریہ محمد علی نارو، ہمارے ساتھ موجود تھے۔
अब आपको बताएं, एक्सपोर्टर्स की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतायज आने लगे हैं। एनर्जी टैरिफ पर हुकूमत इनएक्शन हो गई। वजारत कॉमर्स टेक्सटाइल ने बरोज जुमेरात अहम बैठक बुला ली। एप्टमा, PHMA, अब्बूमा, प्रेगमा समेत दीगर एसोसिएशन के ओहदेदारों को मदऊ कर लिया गया। आपको बता रहे हैं, एक्सपोर्टर्स की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतायज आने लगे। एनर्जी टैरिफ पर हुकूमत इन एक्शन। वजारत कॉमर्स टेक्सटाइल ने बरोज जुमेरात अहम बैठक बिठा ली। एप्टमा, PHMA, अब्बूमा, प्रेगमा समेत दीगर एसोसिएशन के ओहदों को मदऊ कर लिया गया। इसी पर मजीद आगे बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिलाल डोगर मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। बिल्कुल इन एक्शन नजर आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने तमाम एक्सपोर्टर एसोसिएशन मिलकर बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा अमजद की जेर सदारत करवाई थी, जिसमें सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक भी मौजूद थे, चेयरमैन एप्टमा, चेयरमैन अब्बूमा, PCA दीगर ओहदेदार जो शरीक थे। अब हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक टेक्सटाइल सेक्टर जो उनका जोन है उसने एक एक्शन लिया है। एक मीटिंग जो है जुमेरात के रोज वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत कॉल की, जिसमें सबसे अहम चीज के गौहर एजाज जो कि एप्टमा के ग्रुप लीडर हैं उनको मदऊ किया, जबकि इस साल एप्टमा के चेयरमैन, PTI के होते थे चेयरमैन, इसके अलावा अब्बूमा के चेयरमैन, पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन, प्रिकमा के चेयरमैन, इन तमाम एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन, जबकि इसके अलावा फैसलाबाद से साबिक चेयरमैन PTI सुहेल पाशा, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन काशिफ जिया जो जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, उनको भी मदऊ किया गया है ताकि वजारत कॉमर्स टेक्सटाइल ने बरोज जुमेरात अहम बैठक बिठा ली। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगे आटे ने मुश्किल में डाल दिया, 2 वक्त की रोटी को भी मुश्किल बना दिया। फैसलाबाद में फी किलो आटा 115 रुपए, टोबा में भी 100 रुपए पर आ गया। बिल भरना अजाब, खाने का बंदोबस्त इम्तिहान, जीना मुश्किल बना दिया। किसको दुखड़ा सुनाए गरीब की फरियाद, आला हुकाम को रिलीफ की दुहाई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से आटे का रेट जो है वो 5 रुपये किलो और वहाँ हफ्ते की निस्बत आज बढ़ा दिया गया है। जो 5 रुपये किलो आटे की कीमत महंगाई होने की वजह से शहरियों को भी परेशानी का सामना है, तो चक्की मालकान भी परेशान है कि कारोबार भी ठप होकर रह गया। गंदम की कीमतें आसमानों पर पहुँच गई। मेरे साथ इस टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आटा चक्की मालकान के मियाँ सुहेल साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी सर बताइएगा कि आटे का रेट मजीद महंगा कर दिया गया है, चक्की का बिजनेस जो है ठप होकर रह गया, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी मार्केट में गंदम में रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ऊपर से बिजली का फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो डलने से बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हमारा आटा तो सेल हो ही नहीं रहा, हमारी तो सेल बिल्कुल बंद है। गंदम पसई हम कर रहे हैं लेकिन उसमें वो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिससे चक्की मालकान जो हैं वो बहुत परेशानी हाल उनका कोई नहीं है, उनका कोई हाल नहीं है। बिल बिजली के जब आते हैं तो वो बिल नहीं जमा करा सकते, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट इतना डाल देते हैं कि वो हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा है। अगर हम गला मंडी में जाते हैं तो गंदम का रेट इतना ज़्यादा है, हम वो गंदम अगर लाते हैं तो ला के आटा बना के उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट आटा दे रही है सब्सिडी वाला उसके साथ हम नहीं मैच कर पा रहे। हमारा रेट अगर मंडी से हम गंदम खरीदते हैं बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए लोग जो है वो खालस आटा चक्की जिससे सूजी मैदा हम नहीं निकालते वो नहीं ले पा रहे, वो सिर्फ वो सब्सिडी वाला आटा लेते हैं। हमारी सेल जो बिल्कुल बंद है आटे की, जो हमारे बच्चों की रोजी रोटी है वो बंद हुई है, इसलिए तकरीबन पूरे ज़िले के जो चक्की मालकान हैं वो उनका कोई परेशानी हाल नहीं है, वो बेचारे बिजली के बिल से भी तंग हैं। सर बताइएगा कि मजीद जो रेट बढ़ा दिए गए बिजली के, इस वाले से आप एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मतलब क्या कहना चाहते हैं, हुकूमत से मुतालबा क्या करते हैं? ये फ्यूल एडजस्टमेंट है जो वो अपनी मर्जी से डालते हैं जी, जो हमारी पहुंच से बहुत ऊपर है। यूं रेट इतना महंगा हो गया, जो हम गंदम पसाई करते हैं उस पर खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद बाकी लवाजमात भी होते हैं, जो चक्की के कटर वगैरह बेल्ट वगैरह ये वो भी जो बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। उसमें जो है ना चक्की मालकान का कोई हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया उसामा यासीन हमें आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद शहर की कारोबारी हब घंटा घर के 8 बाजारों में पार्किंग के संगीन मसाइल हैं। बाजारों में बेहंगम पार्किंग की वजह से ट्रैफिक मसाइल भी बढ़ने लगे हैं। ताजिरों ने भी परेशानी का इजहार कर दिया है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के पार्किंग के मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे।
संगीन मसाइल की वजह से जहां पर आम शहरी परेशान हैं, ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और ताजरों का ये दरीना एक मुतालबा है कि 8 बाज़ारों के बाहर पार्किंग प्लाजा जो है वो बनाए जाएं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इस हवाले से ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे। कचहरी बाज़ार के अंदर अगर बात करें तो पार्किंग पहले एक साइड पर लगाई जाती है, जो अब दोनों साइड पर लगना शुरू हो चुकी है और दुकानदार भी इसकी वजह से परेशान हैं, कारोबारी तबका परेशान है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, अब दो तरफा ट्रैफिक जो पार्किंग है वो लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन पार्किंग प्लाजे का कोई नामो निशान नहीं, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहूँगा कि फैसलाबाद शहर का जो सबसे बड़ा मसला है वो पार्किंग का ही मसला चल रहा है और जो बेहंगम किस्म की हम लोग पार्किंग करते हैं इससे जो है ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। मैं कहूँगा कि ये दो तरफा जो ट्रैफिक पार्किंग सिस्टम है ये बंद किया जाए। एक तरफ पार्किंग होनी चाहिए और दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो है रवानी से गुजरनी चाहिए। मगर ये है कि जब से देखें ये पार्किंग कंपनी वाले आए हैं और मोटरसाइकिलों से गाड़ियों से जो है वो पर्ची पे पैसे ले रहे हैं, तो तब से देखें इन्होंने पार्किंग ज़्यादा लगाना शुरू कर दी है। आधे से ज़्यादा बाज़ार जो है वो तजावज़ात की सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि देखें आधे से ज़्यादा बाज़ार में चिंची भी खड़े हैं, मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, गाड़ियां भी खड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पार्किंग कंपनी अपनी दिहाड़ी के लिए। घंटाघर के 8 बाजारों में पार्किंग के संगीन मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया फजीला, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सरकारी वाजिबात की बरवक्त वसूली में मुश्किलात का सामना है। अभी तक डिजिटल गिरदावरी के हवाले से खातिर ख्वाह काम ना हो सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात करें डिजिटल गिरदावरी के हवाले से तो फार्मर्स की जानिब से दरखास्तें दी जा रही हैं कि ये दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही, जिसकी वजह से फार्मर्स खाद से महरूम रह रहा है। जबकि दूसरी जानब यही बड़ा मसला बन के सामने आएगा कि हुकूमत के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी जो रेवेन्यू से महरूम रह सकता है। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, सब बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से। आपने भी एप्लीकेशन दी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के, इन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई। देखिए पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और खाद जो है एक अहम ज़रूरत है किसानों की। आगे गंदम की बजाय ज़राई अजनास में सबसे अहम गंदम है, जिसके लिए खाद की दस्तयाबी बहुत यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जिस तरह ये डिजिटल गिरदावरी हुई है इसमें 95% बोगस है। इसमें फ़ोन नंबर गलत लिखे गए हैं और डाटा जो है वो फार्मर के पास जाकर नहीं लिया गया। दफ्तरों में बैठकर वो डाटा जो है ना वो उन्होंने लिख दिया है, जो कि टोटली बोगस है। हमने इसके लिए तहरीरी दरख्वास्त तहसीलदार सदर के ज़रिए, ताकि इस पटवारियों के थ्रू दोबारा इसको असर नौ किया जाए और इसको मुकम्मल शफाफ तरीके से किया जाए, ताकि किसानों को अगर सब्सिडी भी मिले खादों पर तो वो भी उसको भी यकीनी बनाया जा सके। की सुनवाई ना हो सकी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जहां किसानों के मसाइल हल करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैदान में आ गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गिरदावरी में दुरुस्ती और तस्दीक के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। काश्तकार घर बैठे गिरदावरी के मसाइल के हल के बारे में दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काश्तकारों का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए पटवारियों को इकदाम करने का टास्क भी दे दिया। आपको बता रहे हैं, जंग में किसानों के मसाइल हल करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैदान में आ गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गिरदावरी में दुरुस्ती और तस्दीक के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी है। काश्तकार घर बैठे गिरदावरी के मसाइल के हल बारे दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी बताइएगा अवैस। बिल्कुल, जंग में किसानों के मसाइल हल करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इकदाम मुमकिन किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गिरदावरी में दुरुस्ती और तस्दीक के लिए डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इससे कबल जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों को खादों की फराहमी के लिए गिरदावरी सिस्टम जो है वो राइज किया गया था। ताहम जो है काश्तकारों को नामों और मोबाइल नंबर्स की गलती के बायस जो है वो OTP कोड हासिल करने में शदीद हद तक मुश्किलात का सामना था। ताहम इस एप्लीकेशन से अब वो घर बैठे जो अपनी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। इसी के अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से काश्तकारों के रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए पटवारियों को भी इकदाम तेज करने की हिदायत जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैस खान, हमें अपडेट करने के लिए। सीओ हेल्थ की खाली पड़ी सीट पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने डॉक्टर इफ्तिखार नूर को आर्जी चार्ज दे दिया।
मुस्तकिल CEO हेल्थ की तैनाती तक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार नूर ही CEO के फराइज सर अंजाम देंगे। CEO हेल्थ की सीट डॉक्टर मंजूर हुसैन के तबादले के बाद खाली हुई थी। आपको बता रहे हैं CEO हेल्थ की खाली पड़ी सीट पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने डॉक्टर इफ्तिखार नूर ही को आर्जी चार्ज दे दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, सिटी 41 की खबर पर एक्शन लेते हुए डिप्टी कमिश्नर जंग ने CEO हेल्थ की खाली पड़ी सीट पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार नूर का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये सीट डॉक्टर मंजूर हुसैन के ट्रांसफर होने के बाद खाली हुई थी, जिस पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने आर्जी तौर पर डॉक्टर इफ्तिखार नूर को चार्ज दे दिया है, ताकि जो महकमा हेल्थ के इंतजामी अमूर हैं वो निपटाई जा सके। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में कुत्ते काटने का शिकार अफराद के अलावा आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले अफराद को भी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा हुकूमती हिदायत से मुतालिक। आज बिल्कुल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो महकमा सेहत के CEOs हैं इन्हें मरासला जारी किया गया है और वैक्सीन के हवाले से हिदायतनामा जारी किया गया है कुत्तों के कांटे के हवाले से। तो इससे महकमा सेहत इंतजामिया को क्या हिदायत की गई हैं, हमारे साथ CEO फैसलाबाद डॉक्टर शुएबुर रहमान गुरबानी साहब मौजूद, हमसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे मरासले से मुतल्लिक़ जारी हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, RSCs हैं, THQ है, DHQ है, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं हमारे फैसलाबाद में, तमाम में जो है वो डॉग बाइट की जो वैक्सीन है हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह का जो है वो वाक़या पेश हो जाता है, कुत्ता उसको काट लेता है, तो वो फ़ौरन हमारे महकमा सेहत से जो है वो रजू करे, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीन जो है शेड्यूल के मुताबिक उसको लगाएंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर भी हमने ये किया था और इस साल भी हम करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हिदायत जारी हो गई है। जो कुत्तों को पकड़ते हैं, डॉग कैचर हैं या जो TMA के लोग हैं या लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं जो और अपना ये एनिमल जो है अपना इनके साथ और साथ ज़्यादातर जो डॉग बाइट के साथ जो है वो इनको कैचर वगैरह जो इनको पकड़ते हैं, तो इस तरह के जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं हम उनको भी जो है वो डॉग की अपना बाइट की वैक्सीन करें। आवारा कुत्तों को पकड़ने वालों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरियों को लाल रंग, बुरादा और चोकर खिलाया जाने लगा। फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रात झंग रोड पर भट्टा स्टॉप के करीब कार्रवाई करते हुए 2700 किलो मिलावट शुदा मिर्च कब्जे में ले ली, जबकि 3 किलो रंग और 1120 किलो चोकर भी बरामद कर लिया गया। आपको बता रहे हैं सुर्ख मिर्च के नाम पर शहरियों को लाल रंग, बरादा और चोकर खिलाया जाने लगा है। फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रात झंग रोड पर भट्टा स्टॉप के करीब कार्रवाई करते हुए 2740 किलो मिलावट शुदा मिर्च कब्जे में ले ली है, जबकि 3 किलो रंग और 1120 किलो चोकर भी बरामद कर लिया गया है। सुर्ख मिर्च के नाम पर शहरियों को लाल रंग, बुरादा और चोकर खिलाया जाने लगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में इस बात का जो है वो भी इंकशाफ हुआ है कि सुर्ख मिर्च के नाम पे शहरियों को जानवरों का चारा जो है वो खिलाया जा रहा है। फूड अथॉरिटी की टीम ने जंग रोड पर कार्रवाई करते हुए चोकर मिली सुर्ख मिर्च जो है वो बरामद कर ली है। मौका पर मौजूद इंस्पेक्टर के मुताबिक 2740 किलो सुर्ख मिर्च बरामद की गई है, जिसमें चोकर और लकड़ी का बुरादा जो है वो शामिल किया गया था इस सुर्ख मिर्च के वजन को बढ़ाने के लिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए फूड अथॉरिटी की टीम ने तमाम तर मिलावटी मिर्चों को न सिर्फ अपनी तहवील में लिया बल्कि 1120 किलो चोकर और 3 किलो सुर्ख रंग जो है वो भी बरामद कर लिया है। बहुत शुक्रिया वकास बेग हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में कचहरियों में टाउट माफिया साइलिन को लूटने लगा है। टाउट माफिया शहरियों को ब्लैकमेल करके पैसे हथियाने लगा है। इस हवाले से वकला का कहना है कि हम इतनी तालीम हासिल करके इस मकसद तक इस पेशे में आए हैं, मगर टाउट माफिया हमारे नाम पर ही लोगों से नकलों या पुलिस के हवाले से ड्रा कर रकम बटोर लेते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाई से। जी हाशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की कचहरियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो टाउट माफिया है उसका यहाँ पर राज है, और वो वकला जो कि इतनी स्ट्रगल करके इतनी मेहनत करने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ अदालतों में केस लड़ते हैं और जो काम करते हैं वही जो टाउट माफिया है वो चंद पैसे लेकर वही काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है और लोगों को धोखा दे से लोगों से जो पैसे हैं वो बटोर रहे हैं। तो वकला हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर आप बताइएगा, आप खुद भी वकील हैं, तो टाउट माफिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये टाउट माफिया जो यहाँ पे कचहरी में और थानों में है ना जी, आगे लोग बेचारे गरीब पिछड़े हुए लोग आते हैं,
मुख्तलिफ परेशानियाँ लेके आते हैं। तो यहाँ पे आके टोट माफिया उनका यानी कि ना काम होने देते हैं, ना वकला के पास सही जाने देते हैं, ताकि उनको इंसाफ भी नहीं मिल पाता। तो उसके बाद वो इस पूरे माशरे में एक नसूर है, ठीक है। तो टोट माफिया का यहाँ पे कचहरी में भी और थानों में भी मुकम्मल बंद होना चाहिए। सर ये काम करते पैसे लोगों से किस तरह बटोरते हैं, नकलों के बहाने या किस तरह करके लोगों को लूटते किस तरह, या अपने आप को वकील शो करवाते हैं, और आप जो इतनी मेहनत करके आए हैं आपको पता ही नहीं होता। बहुत शुक्रिया हाशिर वड़ाइच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।